Assalamualaikum, beta. We're starting off from the very basic. Uh, so previously, beta, there used to be a paper version of the SAT. Ab jo SAT hai, we call it a digital SAT, and you're required to take it on a laptop. You're still pretty much required to go to an examination center in order to take the SAT, but you're required to take your own device with you. Ideally, you're supposed to take a laptop with yourself, though you can take an iPad or a tablet, but we recommend that you take a laptop with yourself. The digital change was adapted back in March 2023 for the international students, and for the US students, the change was adapted in March 2024. But now, anywhere or everywhere, the paper is referred to as a DSAT. We do not have the paper version of the SAT available anymore. So if any of you wishes to take the paper version of the SAT, you can't take it anymore, beta. We keep getting this query, is there a way for me to take the paper version of the SAT? So there's no way you can take the paper version of the SAT anymore. अब जो SAT है वो आपको लैपटॉप पे देना होगा और वो डिजिटल हो चुका है. द चेंज हैज बीन अडैप्टेड एंड अगेन आपको इसके लिए रजिस्टर होना पड़ता है. कैसे? we'll talk about that in a bit. So once again, you're still required to take the SAT at one of the centers, and once again you're supposed to take your laptop or tablets with yourself. And if you're not carrying your laptop with yourself for some reason, or if you do not have your laptop for some reason, so you have to let the college board know 1 month in advance that you'll be needing a laptop. लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन वी डू नॉट अगेन रेकमेंडेड बिकॉज वंस अगेन पता कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, उसमें जो आपका लैपटॉप है वो कैसा होगा. तो प्लीज जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट कि आप एक मंथ इन एडवांस आपको कॉलेज बोर्ड को ये रिक्वेस्ट करना पड़ता है. लेकिन अगेन वी रेकमेंडेड यू कैरी योर ओन लैपटॉप विद योरसेल्फ. आपका जो एसएटी है, इन केस बेटा इफ यू प्लान ऑन सिटिंग फॉर द अक्टूबर अटेम्प्ट, तो बेटा हम जस्ट इन केस इफ प्लान ऑन सिटिंग फॉर द अक्टूबर अटेम्प्ट, तो आपके पास एक तो जितनी अटेम्प्ट्स होती हैं but broadly speaking, we're going to have the reading and the writing. There are two modules for the reading and writing. For the maths, there are again two modules. So previously we used to refer to them as the sections. अब जो है हम उसको बेटा मॉड्यूल कहते हैं. So there are two modules for the reading and writing. There are two modules for the maths. अब previously हमारे पास जो terminology यूज होती थी वो sections की यूज होती थी. But now the terminology that we use when it comes to the SAT is a module. तो अब आपके पास दो मॉड्यूल्स इंग्लिश के होते हैं बैक टू बैक, एंड दो मॉड्यूल्स आपके पास मैथ्स के होते हैं बैक टू बैक बेटा. तो 5th ऑफ अक्टूबर को अगर आप जस्ट इन केस इफ यू प्लान ऑन सिटिंग द अक्टूबर अटेम्प्ट, तो वो 5th ऑफ अक्टूबर है. अगर आप नवंबर, दैट्स 2nd ऑफ नवंबर. if any of you let's just say plans on sitting the November attempt, तो आपका SAT पेपर नवंबर को है. एंड इन केस इफ एनी ऑफ यू प्लान ऑन सिटिंग इन द दिसंबर, तो अब दिसंबर का SAT जो है आपका वो इस साल हमारे पास 7th of December को है. This is for this year. The dates keep on changing every year, और हर साल की एक न्यू डेट्स अनाउंस होती हैं. तो डिपेंड करता है कि आप कब अटेम्प्ट कर रहे हैं, और हर ईयर की एक डिफरेंट डेट होती है बेटा. So once again, you have two modules for the reading and writing, followed by two modules for the maths. We'll talk about that in a bit. The one change that has been adapted for the DSAT is that now we have calculator allowed in both the modules. तो अब आप चाहे मॉड्यूल 1 कर रहे हो मैथ्स का या मॉड्यूल 2 कर रहे हो, दोनों में अब आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है. प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव कैलकुलेटर अलाउड ओनली इन वन मॉड्यूल. अब आपके पास दोनों मॉड्यूल्स में कैलकुलेटर अलाउड है. कुछ चीज़ें जो कि आपको ब्रॉडली समझनी है वो ये हैं. वी गोना हैव अ टोटल ऑफ 64 minutes for the English section. That is 32 minutes for each of the modules, making it a total of 64 minutes. And you're going to have a total of 54 questions altogether. There will be 27 questions in each of the English modules. अब आपके पास once again दो modules English के, you're going to have 27 questions in the first module, and the time you're going to have would be 32 minutes. So you're going to have a little over 1 minute per question. Once again, for the second module is going to be the same. आपके पास 27 questions होंगे. We're going to have 32 minutes. Maths में भी it's no different. आपके पास again two modules हैं, but this time in maths you have more time, so you've got 35 minutes for 22 questions, so you have a little more than 1.5 minutes per question. And again for the second module you've got 35 minutes and you've got 22 questions. Maths में all together हमारे पास 70 minutes हैं, 44 questions हैं. English में हमारे पास 64 minutes हैं, 54 questions हैं. Maths के अंदर आपके पास
कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज नहीं है। इंग्लिश आपका इंटायरली एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। मैथ्स में 33 क्वेश्चंस हमारे पास एमसीक्यू हैं। द रिमेनिंग 11 आर what we refer to as the student produced response. उसमें होता क्या है कि you're supposed to manually put in your answer through a keyboard. So for example, if your answer is 3.4, so there won't be an option of 3.4. You'll have to go to the keyboard and type in 3.4 manually. अगर आपका answer 0.5 है, you'll have to go to the keyboard and you'll have to put in the answer 0.5. So that's how it works. But coming to the scoring part, the SAT is not graded on a scale of 0 to 1600. That is a confusion among the kids usually. कि SAT का score जो है वो 0 से 1600 के बीच में होता है. The SAT is always graded on a scale of 400 to 1600. So the minimum score you could have there on the SAT is 400. It's not 0. So let's just say if you were to register for the SAT and if you do not show up there for some reason, you would still be getting 400 points. तो SAT जो है आपका वो 0 से 1600 के स्केल पे ग्रेड होता है. The maximum marks you could have on the reading and writing would be 800. The maximum marks you could have on the maths would be 800. जो मैथ्स जो रीडिंग एंड राइटिंग का आपका स्कोर है वो वेरी करता है 200 से 800 के बीच में. सेम गोस फॉर द मैथ्स, इट वेरीज बिटवीन 200 टू 800. और ये फिक्स्ड है. आप द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स यू कुड हैव ऑन द रीडिंग एंड राइटिंग वुड बी 800 एंड द मैक्सिमम यू कुड हैव ऑन द मैथ्स would be 800. The minimum you could have is 200 for the reading and writing. The minimum, once again, you could have maths for would be 200 as well. So your score will always be varying between 400 and 600 for the SAT. These are the basics. One of the most important things you must know about the SAT is these 2 points. You must get yourself registered with the College Board on this address, on this web address. So you need to go to the www.collegeboard.org and sign up there for the relevant time. So let's just say अगर आपको October के paper देना है, October में पेपर होना है, तो you need to choose the relevant date there, the examination center there, and regardless of the city that you're taking the class from. कराची में आपके पास सिटी पूरा होता है, लाहौर में होता है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, and there are other centers as well. Peshawar, I'm not sure about though. लेकिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में we do have multiple centers. But एक चीज आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे याद रखिएगा कि the seats tend to run out very fast. For example, अभी SAT अगस्त की सीट्स की अभी भी डेडलाइन है, but there are no seats available. So in Karachi and in Pakistan overall, usually we do have this problem. Particularly लाहौर में भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है. इस्लामाबाद में we do not have this problem. We may have this problem over there this year as well. But historically, Lahore, Karachi, and this problem is very common. So the problem is that the seats tend to run out. So in case, beta, if you've been deferring your registration with College Board, so I would really advise that, because usually बच्चे देख रहे होते हैं कि अभी deadline में time है, अभी deadline में time है. So that is an international deadline, but that's for the city, or that's for the countries where there are more examination centers. हमारे पास इतने ज़्यादा centers नहीं हैं. For example, there would be hardly 4 to 5 centers in Karachi. There are little more than 6-7 centers in Lahore, but the centers tend to fill pretty quickly बेटा. तो आपको अगर जाना है और अगर रजिस्टर होना है तो मेक श्योर टू गेट रजिस्टर ASAP बेटा. बिकॉज अगर आप डेडलाइन का वेट करें तो वो डेडलाइन इंटरनेशनली सारी कंट्रीज के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि हमारे पास डेडलाइन से बहुत पहले सीट्स खत्म हो जाती हैं. एंड दैट इज द केस विद अ लॉट मेनी ऑफ द किड्स हु वांटेड टू सिट इन द August attempt, and now they have had to defer their SAT for the October, and some of them may have to push it to the December if they do not find the seat. But for the October, the seats are available for now, so make sure to get registered ASAP. एक और भी चीज बेटा जो कि हमें SAT के लिए चाहिए, and that's super vital, that is a valid passport. पासपोर्ट का आपको ऑलरेडी पता है. आई एम श्योर यू गाइस वुड बी हियरिंग द न्यूज़ के पासपोर्ट बनने के लिए कभी इंक खत्म हो जाती है, कभी पेपर खत्म हो जाता है, कभी फिर इंक खत्म हो जाती है. तो इफ यू डू नॉट हैव अ वैलिड पासपोर्ट, तो मेक श्योर टू गेट इट मेड ASAP, और इसको अर्जेंटली बनवा लें. अर्जेंटली बनवाएंगे तो शायद आपके पास जो है फिर आ ही जाएगा. लेकिन इसको अगर नहीं है तो यू रियली कांट सिट द SAT. बर्थ सर्टिफिकेट्स, स्मार्ट CNIC, बे फॉर्म्स, and any other form of identity that you may have isn't allowed. So once again, if you've been reading the information from the internet और आप खाली यूएस के बच्चों की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, एज उनके लिए क्या चाहिए, तो उनका तो सोशल सिक्योरिटी के कार्ड से भी हो जाता है, उनका तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी हो जाता है. तो दोज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द US सिटीजन्स. सिर्फ पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लिए है, बिकॉज हिस्टोरिकली इन 3 कंट्रीज में ज़्यादा स्कैम हुआ है कॉलेज बोर्ड के साथ. इंडिया में पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मेक श्योर कि आप
correct requirements follow कर रहे हो. So if you've been reading the information from the internet, so make sure you've been reading the information for Pakistan. So for Pakistan, we need a valid passport. Let's just say all of you are very well prepared, but let's just say on the day of the exam you forget your passport, so you won't be allowed to take the SAT. Please understand, we do not need a passport to get registered with the SAT, but we do need it on the day of the exam. मेरे टीचिंग करियर में in these 13-14 years, I have had around 15 to 20 students who forgot their passports and they were simply not let in just because they did not have the passport with them. तो इसका आपने ख्याल रखना है कि you need to get your passport made ASAP if you do not have one already, and if you have one already, to make sure it's not expired. तो एक तो चीज़ ये है कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए. The next important thing that you must remember is कि if your name is, for example, Muhammad Ahmed, let's just say if your name is Muhammad Ahmed Warsi, so this is your first name, this is your middle name, this is your last name. So let's just say if your name is like this on your passport, and if you somehow spell it like this on your college board ID, so just because of this one minor spelling difference, they would assume that you're a different person and you're trying to trick them. उनको ऐसे लगेगा कि आप उनको पागल बना रहे हैं या आप उनको ट्रिक कर रहे हैं. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, एंड मेक श्योर करें कि जैसे ही आपका नाम पासपोर्ट पे है वैसे ही आपका नाम कॉलेज बोर्ड की भी आईडी पे हो. तो अगर आप यहाँ पे सैयद यूज करते हैं तो मेक श्योर टू यूज सैयद ओवर हियर एज वेल. तो मेक श्योर टू नॉट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक. बेटा आपका नाम पासपोर्ट पे कौन सा होगा, वो होगा जो कि आपके ऑलरेडी बे फॉर्म पे होगा. तो अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट अभी नहीं है यानी यू बीन रनिंग कि सर मेरी तो अब मेरे पासपोर्ट जब तक आएगा तो कॉलेज बोर्ड की तो रजिस्ट्रेशन का टाइम मेरा निकल जाएगा. तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट. आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका आपके फादर या आपकी मदर के पास, आपके पेरेंट्स के पास होगा. इट कुड बी बे फॉर्म, इट कुड बी योर स्मार्ट कार्ड, इट कुड बी एनी अदर फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी. तो आप उनसे वो ले लें, वो देखें कि आपका नाम कैसे है. वो नाम वैसे ही आपका नादरा के बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी आएगा, टेटस पासपोर्ट पे भी वैसे ही आएगा. जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो कि बच्चों से हो जाती है. तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस पार्ट. So, I'm going to talk about the scores and the cycles of the admissions that we have. इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं. I'm assuming कि कुछ आप में से इंटरनेशनली भी अप्लाई कर रहे होंगे या शायद मेजॉरिटी इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर बैच थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कुछ बैच ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बच्चे आई को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ बैचेस मिक्स होते हैं. तो I'm going to explain everything regardless of where you're applying. So in case beta if you plan on applying to one of the Ivy Leagues or one of the better universities या one of the best universities in the world, तो उसमें दो किस्म के हमारे पास एडमिशंस होते हैं. एक होता है हमारे पास अर्ली एक्शन एंड अर्ली डिसीजन, एक होता है हमारे पास रेगुलर एक्शन एंड रेगुलर डिसीजन. By early action and early decision, what we basically mean is that you are the one who's taking the action, as in you're filling out the form and everything, you're providing them with everything. अर्ली डिसीजन क्या होता है? अर्ली डिसीजन का मतलब होता है कि जो यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगी आपको एडमिट करने के लिए, whether they wish to admit you or they do not wish to admit you. So action is taken by you, decision is always taken by the university. अब अर्ली एक्शन का मतलब क्या है? अर्ली एक्शन का मतलब ये है कि we tend to apply by November 2024 for this year. तो इस साल हम अगर सारी चीजें यूनिवर्सिटी के लिए नवंबर 2024 तक रेडी कर देते हैं, and if we apply by November 2024, so we'll get to hear from the university by mid of December whether they're admitting us or not. इसको हम कहते हैं बेटा अर्ली एक्शन. अब इसमें आपको अपनी एज योर एससीटी स्कोर, ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके पर्सनल स्टेटमेंट्स, आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, आपके कॉलेज एसेज, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप अपने टीचर से लिखवाते हैं, जो आपके टीचर्स होंगे आपके ए लेवल्स के या इंटरमीडिएट के. तो पर्सनल स्टेटमेंट आप खुद लिखते हैं, कॉलेज एसेज आप खुद लिखते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके रिजल्ट्स वगैरह जो होते हैं, फिर आपने जितनी भी पार्टिसिपेशंस वगैरह अभी तक लाइफ में करी हुई हैं, चाहे आपकी ईसीज हैं, आपकी इंटर्नशिप्स हैं, आपके कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी कोई रिसर्च है जो कि पब्लिश है अनपब्लिश्ड है, वो सारी चीज़ें उनके लिए हम एडमिशंस में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट्स मटीरियल्स. अर्ली डिसीजन का जो रिजल्ट आता है दैट विल बी आउट बाय मिड ऑफ दिसंबर 2024. रेगुलर एक्शन का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बाद में अप्लाई करेंगे, सो विल बी अप्लाइंग बाय मिड ऑफ जनवरी और लेट जनवरी. इसके बाद आप यूएस की यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे अनलेस आप स्प्रिंग को टारगेट कर रहे हैं. फॉल वो होगा जो कि अगस्त से यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी. दैट इज हमारे पास इंटरमीडिएट या सीआईज का टाइम जो एग्जाम्स हैं हमारे पास वो मई जून में होते हैं. इंटरमीडिएट भी अराउंड सेम टाइम ही होता है. फिर आपका रिजल्ट आता है अगस्त में 11
अगस्त तक हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद जो है हम फिर यूनिवर्सिटी के लिए चले जाते हैं। उसी को हम फॉल सेमेस्टर कहते हैं। स्प्रिंग वो सेमेस्टर होता है जो हमारा फिर जनवरी से स्टार्ट होता है। तो अब रेगुलर एक्शन में क्या होता है बेटा कि वी टेंड टू अप्लाई बाय मिड ऑफ जनवरी और लेट ऑफ जनवरी, एंड देन वी गेट टू हियर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाय मार्च टिल मिड ऑफ मे, और तब तक हमारे पास एक आंसर आ जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अर्ली एक्शन में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी के ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा परसेंटेज है, सो यू हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड देयर इन द अर्ली एक्शन। और रेगुलर एक्शन में आपके पास थोड़े से कम चांसेस होते हैं। अर्ली एक्शन का मतलब ये होता है कि अब ये बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग का मतलब है कि अगर आपका एडमिशन हो गया है तो यूनिवर्सिटी को लगता है कि अब आप काफी सीरियस हैं और आप आएंगे भी और आप एडमिशन लेंगे। अर्ली एडमिशन, अर्ली साइकिल्स में यूजुअली कौन लोग जा रहे होते हैं? हु हैव done a lot of work in terms of their admissions already, in their grade 10, grade 11, and their A2, and they have everything ready. They have their ST scores ready, and all they're waiting is for the university's application to open, and then they apply. But please notice it is binding. जो बाइंडिंग का यहाँ पे मतलब मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि बाइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं गए तो आप कोई सू कर देंगे। बाइंडिंग का मतलब ये है कि आप यूजुअली अर्ली एडमिशन्स में usually बच्चे 8 to 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं, एंड इफ यू गेट इन तो आइडियली यू विल बी जॉइनिंग वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो ये इंटेंट आपकी यूनिवर्सिटी को शो कर रहा होता है कि भाई मैं ऐसे कोई मैं टाइम पास नहीं कर रहा, इफ आई गेट इन तो मैं आऊंगा। तो यूनिवर्सिटी को भी पता होता है कि ये सीरियस लोग हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अर्ली एडमिशन में एमआईटी में भी हो जाएगा, जिनका हार्वर्ड में भी हो जाएगा, स्टैनफोर्ड में भी हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियली पॉसिबल फॉर यू टू जॉइन ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। अब फिर आप उनको बताते हैं कि भाई देखें आई प्रेफर टू गो हेयर बिकॉज आपका प्रोग्राम में ये चीज़ें हैं, मुझे ये करना है, और फिर वो आपको कहते हैं ओके ठीक है दैट्स अंडरस्टैंडेबल, आप वहाँ जाके कर लें। लेकिन यूजुअली होता ये है कि अर्ली एडमिशन में वही बच्चे जा रहे होते हैं जिनको जिनकी इंटेंट बहुत क्लियर होती है, जिनको पता होता है कि अगर हमारा एडमिशन हो गया तो हमने जाना भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स वगैरह फिर हमें मना कर देंगे या हमारे कोई फाइनेंसिस के इशू होंगे। तो लोगों की इंटेंट बड़ी क्लियर होती है, और यूनिवर्सिटी को भी पता होता है कि इफ दे get in or if we admit them so they will be joining the university unless they have a better offer। इसका एटलीस्ट बढ़ने का थोड़ा सा वर्ड बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर क्या मतलब अगर मैं नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो लोग जाते हैं वो किसी वजह से ही अप्लाई कर रहे होते हैं। उनका होमवर्क बहुत हुआ हुआ होता है, उनकी सारी चीजें ऑलरेडी अक्टूबर तक, अगस्त 2024 तक उन्होंने अपने एएस में ही एससीटी दे के एक अच्छा स्कोर करा होता है। दे हैव एवरीथिंग रेडी ऑलरेडी, और वही जा रहे होते हैं। और तो यूनिवर्सिटी को भी बहुत क्लियर होता है कि ये लोग जो आ रहे हैं इनकी इंटेंशन है either they will be joining us or maybe if if they do not join us and if they have a better offer so they may consider that better offer। इसी को हम अर्ली एडमिशन कहते हैं। रेगुलर एडमिशन जो है वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि आपका हो गया तो ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपको जाना हो तो नहीं आओ। इन अ वे यहाँ पे भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की इंटेंट बड़ी क्लियर होती है। लोग जो लोग जा रहे होते हैं उनको पता होता है कि यार एडमिशन हो गया तो एक ऑलरेडी एक लॉटरी है, बिकॉज बड़े कॉम्पैरेटिव एडमिशन तो हो गया तो चले ही जाओ। अब मैं आपको स्टेटिस्टिक्स कुछ दिखा देता हूँ। अगर हम सिर्फ आईवी लीग्स की अगर बात करें, सो देयर आर 8 यूनिवर्सिटीज दैट वी कंसीडर एज और व्हिच आर बेसिकली कंसीडर्ड वन ऑफ द आईवी लीग्स स्कूल्स। अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो सब की, अगर मैं 2027 की बात करूंगा तो अर्ली एडमिशन की जो परसेंटेज है you would see that it's more than that of the regular admission cycle, and it's usually gonna be 3 to 4 times of the regular admissions। आप देख सकते हैं जिनके आगे एनवाईपी है वो अभी अवेलेबल नहीं है वो डेटा, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है सो दैट्स इजी फॉर यू टू कंपेयर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीटी मच फॉर मोस्ट ऑफ दीज स्कूल्स। तो अर्ली एडमिशंस का बस ये होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी को क्लियर होता है कि ये जो लोग आ रहे हैं दे आर प्रीटी सीरियस, दे आर प्रीटी कमिटेड एंड दे विल बी जॉइनिंग अस। रेगुलर में उनके पास एडमिशंस की साइक परसेंटेज अगर आप देखेंगे एप्लीकेशंस वो काफ़ी हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे ये देखें फोर इन इस पूरे कॉलम को आपने इस कॉलम से रिसीव कंपेयर करना है। तो रेगुलर में यू कैन सी कि बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। So if you have already decided on joining one of the Ivy League school, and if you have the rest of the things ready that I'm going to be talking about in the next bit, in the next 5, 7, 10 minutes, so go for the early admissions. And I'm going to show you the same for one of the for another year. ये class of 2026 है, तो आप इसको और इसको compare कर लें। तो once again early admission में you can see कि जो percentage है, the percentage of getting accepted
is way more than the regular admission. और once again रेगुलर की जो आपके पास एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, एप्लीकेशंस कम होती हैं, but there is no harm in applying early. In fact, we advise that if you have everything else ready, then you go for the early admissions. अब थोड़ा सा हम आगे और कुछ टर्म्स पे आ जाते हैं जिन पे हम जो कि यूजुअली कोविड के बाद बहुत पॉपुलर हो गई, एंड पीपल डू हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद यूजिंग दीज टर्म्स, एंड वो बाद में फिर बच्चे पूछ रहे होते हैं या हेजिटेट कर रहे होते हैं कि हम पूछें या ना पूछें, तो मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ कि किस टर्म का क्या मतलब होता है. तो टेस्ट ऑप्शनल का मतलब है कि यू इफ यू आर अप्लाइंग टू वन ऑफ द टेस्ट ऑप्शनल, सी सो दैट मींस कि यू हैव अ चॉइस टू टेक द एसीटी और एसीटी. एसीटी हमारे पास इतना पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है, यूएस में इट्स नाउ एज पॉपुलर एज एसईटी. एसईटी पहले ज्यादा पॉपुलर था, फिर देयर वाज दिस वन ईयर जब एसीटी और एसईटी के बच्चे दोनों इक्वल हो गए. अभी भी एसईटी ज्यादा ही पॉपुलर है, बट वंस अगेन बहुत ज्यादा बच्चे एसीटी भी यूएस में देते हैं. तो टेस्ट ऑप्शनल का ये मतलब है. टेस्ट ब्लाइंड का क्या मतलब है? अच्छा, माय बैड, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट फ्लेक्सिबल को टेस्ट ऑप्शनल को कंफ्यूज कर दिया है. तो यू हैव अ चॉइस टू टेक एससीटी. एससीटी का मतलब माय बैड इज कि आपके पास चॉइस है कि आपने एससीटी देना है या नहीं देना, बट आई एम गोना कम बैक टू दिस क्योंकि मैं टेस्ट फ्लेक्सिबल से उसको रिलेट कर रहा था, तो मैं अभी आई बी कमिंग बैक टू दिस. टेस्ट ब्लाइंड का मतलब ये है कि द यूनिवर्सिटीज वोंट बी लुकिंग एट योर स्कोर्स, सो इवन इफ यू वर टू मेंशन योर स्कोर्स दे वोंट बी पेइंग अटेंशन टू योर स्कोर्स. इसको हम कहते हैं टेस्ट ब्लाइंड. टेस्ट फ्लेक्सिबल का मतलब है कि टेस्ट का स्कोर रिक्वायर्ड है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप एसीटी दो, एसईटी दो, एपी एग्जाम्स जो एडवांस प्लेसमेंट होते हैं वो दो, या यूजुअली लोग एपी को कंबाइन करते हैं एसईटी के साथ या एसीटी के साथ अगर आप आईवी लीग्स को टारगेट कर रहे हैं. So I'm coming back to the test optional. Test optional एक term थी which gained a lot of popularity post COVID. So, क्योंकि कोविड की वजह से एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज की कैंसिल होती रहती थी, तो लॉट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मेंट टेस्ट ऑप्शनल बिकॉज ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट एक दिन पहले लोगों को ईमेल आती थी कल आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्लोज्ड है. दैट हैपेंड इन पाकिस्तान एंड दैट हैपेंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड एज वेल. यूनिवर्सिटीज मेंट टेस्ट ऑप्शनल. सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर स्टिल टेस्ट ऑप्शनल, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग द आईवी लीग्स, फॉर एग्जांपल येल जो है, येल अब दोबारा आ रही है, वो दोबारा वो कह रहे हैं कि हमने टेस्ट ऑप्शन पे आना है. येल अगर आप देखोगे तो येल पहले जो है हमेशा से टेस्ट लेते रही है. रिसेंटली येल ने टेस्ट लेना या एसईटी को एक्सेप्ट करना बंद करा और दे वेंट टेस्ट ऑप्शनल. अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो उसके फिर देन दे विल बी लुकिंग एट द रेस्ट ऑफ योर प्रोफाइल. टेस्ट ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप टेस्ट का स्कोर नहीं दे रहे तो नाउ दे विल बी लुकिंग एट द rest of your application. So now the entire weightage has been transferred to the rest of your application, जिसमें आपकी academics हैं, चाहे आपने आपके जो भी ओ लेवल्स और अभी तक अगर आपके एएस के ग्रेड्स हैं तो एएस के ग्रेड्स हैं, फिर आपकी ईसीएस हैं, आपकी इंटर्नशिप्स हैं, आपकी कॉलेज एसेज हैं, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, आपकी पार्टिसिपेशंस हैं. आप to the test optional universities, please understand that students who are applying with their scores and same grades and same extracurricular as yourself would stand a better chance than you would if you do not apply with your SAT scores. So you need to have a very comprehensive, detailed list of the universities that you're applying to, and ideally you should be applying to 10 universities or 8 to 10 universities. You know, 2 3 universities for which your SAT score is a good match, and 2 3 universities for which you know that you're going to get in easily because your score or your SAT score is higher than that of the class that they admitted previous year, and 2 to 3 schools for which you do know that your SAT score is less. So you should have 2 to 3 safety schools as well, just to be on the safe side. But at the same time, even if one of the colleges or the universities that you're applying to is test option, so you must still apply with the SAT because that gives them a more comprehensive picture of where you stand, and that gives them a more holistic idea of what kind of candidate you are. So till here, if any of you has any questions, so please be vocal about it. Please, either you can unmute yourself, you could just ask me there on the WhatsApp chat as well. I believe you can text there on the WhatsApp group, or you could just unmute here. So I'll be answering those better. If you got any question till here, so please do let me know. So if you plan on applying to one of the Ivy Leagues, so we need a bare minimum of 1450. Lekin please understand, with 1450, you need a very good profile. प्रोफाइल बिल्डिंग एक चीज़ होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि
हमारे पास बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती। तो प्रोफाइल बिल्डिंग में होता क्या है कि आपको ग्रेड 8 या 9 से अपनी प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है कि मुझे क्या क्या कौन कौन से पार्टिसिपेशन करनी है, किन किन इवेंट्स में जाना है, चाहे वो लोकली हो रहे हो इंटरनेशनली हो रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स में मुझे डिस्टिंक्शंस को टारगेट करना है, कौन सी मुझे इंटर्नशिप्स करनी है, कौन सी जगह के ऊपर कौन सी फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अगर जाना है तो उसके अंदर मुझे कौन सी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कैंसर के ऊपर रिसर्च करके कोई पेपर इशू करना है, कोई रिसर्च इशू करना है, या समहाउ मुझे कोशिश करना है कि वो मेरी रिसर्च किसी मैगजीन का पार्ट बन जाए। तो इंटर्नशिप्स, ग्रेड्स, आपकी आपकी सारी पार्टिसिपेशन जितनी भी है, आपकी जितनी भी ईसीएस हैं, लार्जली स्पीकिंग ईसीएस का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो भी ईसीएस हैं, बट लार्जली रिलेटेड टू द डिग्री दैट यू आर अप्लाइंग। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर साइंसेज में जाना है तो कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड आपने क्या क्या ईसीएस करी हुई है। एनीथिंग दैट बेसिकली मेक्स it clear to the university कि आपकी intention क्या है, whether you really plan on actually or you have been planning on over the years to study this degree or not। इसी को हम कहते हैं complete profile बेटा। तो अगर ये complete profile अगर हमारी होगी, अच्छी होगी, so with this score we stand a chance। But please understand, in the same breath I would like you guys to know कि a very good score over here won't make up for your average profile। तो अगर आपके पास 1600 है लेकिन आप कहेंगे सर ग्रेड्स भी नहीं है और प्रोफाइल भी वीक है, तो क्या हो सकता है? तो नहीं हो सकता बेटा। अगर हम आईवी लीग्स की बात करें, अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं लेकिन प्रोफाइल वीक है, तो फिर आप टॉप 80 यूनिवर्सिटीज को कंसिडर ना करें, फिर आप टॉप 100 पे जाना शुरू करें। और टॉप 100 भी कोई बुरी नहीं है, टॉप 500 भी कोई बुरी नहीं है। यूएस में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। यू नीड टू सी के आपकी प्लानिंग क्या है, आपने होमवर्क ऑलरेडी कितना करा हुआ है। बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान में एक रॉन्ग परसेप्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान लोग समझते हैं कि एसईटी कोई एक मैजिक बैंड है, हमने इंटरमीडिएट कर लिया और हमने ए लेवल्स कर लिया, बाकी हमने कुछ भी नहीं करा हुआ, बस एसईटी में हमारा 1500 आ जाए और यूएस में ना हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। तो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। आप वैसे ही एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो यूएस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी है ना, जो कि टैक्स पेयर के मनी से चल रही होती हैं यूजली, बेशक उसमें भी बच्चे जो है स्टूडेंट लोन लेके बाद में उसको पे बैक करते हैं, बट वो ये चीज़ उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है कि वो 1500 को आपको फुल राइट दे दें और आपसे 1 रुपया भी ना लें। तो पहले ऐसा तो नहीं होगा, इस चीज़ को माइंड से अपने क्लियर करें। यू डू गेट डिसेंट स्कॉलरशिप्स, लेकिन उसके लिए आपके पास बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रोफाइल बिल्ड बट समहाउ यू होप के एसईटी कोई आपका सेवियर होगा और एसईटी से आपकी बाकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और एसईटी का बहुत स्कोर आपकी पूरी एकेडमिक्स को भी मेकअप कर देगा, आपकी ईसीएस को भी मेकअप करेगा, आपकी इंटर्नशिप्स को भी मेकअप करेगा, आपकी पार्टिसिपेशन को भी मेकअप करेगा, आपकी अचीवमेंट्स को भी मेकअप कर लेगा। तो ऐसा नहीं होगा। ये एक गलत परसेप्शन है पाकिस्तान में बच्चों के बीच में, और वो ये समझते हैं कि अगर हम सिटी लेकर आ गए, एक अच्छा स्कोर लेकर आ गए, तो हम सिंपली उसकी बेसिस पे कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में चले जाए या हमारे पे फुल राइड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स एक्चुअली प्रैक्टिकली। अगर आप इस अजम्पशन को लेके आगे जा रहे हैं तो आप अपने साथ गलती कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। दिस रियली डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है। अगर हम यूएस की स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यू कैन गेट इनटू अ गुड decent state university with a score of 1200 depending upon the program कि आपने कौन से प्रोग्राम में जाना है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। इन स्टेट का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल टेक्सास में रहते हैं और आप टेक्सास में ही अप्लाई करें, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज बहुत कम है। कुछ यूनिवर्सिटीज की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एससीटी के प्रोग्राम के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की एससीटी की स्कोर्स की रिक्वायरमेंट प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी वेरी करती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करना है कि आपने कौन सी स्टेट में पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कौन से प्रोग्राम में पढ़ना है, एंड देन यू नीड टू सी कि आपका अकॉर्डिंगली उसमें उसके लिए कैसे काम करने की ज़रूरत है। लम्स फॉर एग्जाम्पल, ये शायद आपको थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, लेकिन जस्ट गिव मी 5 minutes एंड आई एक्सप्लेन दिस टू यू कि आई हैव सीन पीपल गेटिंग इनटू लम्स विद अ स्कोर ऑफ 1170। मेरे अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन इसके ऊपर हुआ है, लेकिन उनके पास अच्छी थी, उनके पास ग्रेड्स बस बहुत अच्छे थे। लम्स के लिए देर इज एन इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास 5 A's नहीं है वो अंदर, तो 1170 से फिर आपका नहीं होगा बेटा। अब ये कौन से 1170 वाले होंगे कि जिनके पास इधर जो है 6 A स्टार्स होंगे, 2 A's होंगे या 8 A स्टार्स होंगे, एससीटी में वो बीमार हो गए किसी वजह से नहीं पढ़ा,
ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सारे रीजंस हैं, सिटी ऐसे ही दे दिया, ऐसे स्कोर के साथ अप्लाई कर लिया, उनका हो गया। लेकिन उनके पास प्रीवियसली एकेडमिक्स उनकी बहुत स्ट्रांग थी। तो यू कैन गेट इन विद स्कोर ऑफ 1200 इन लम्स, डिपेंडिंग अपन कि आपके पास आप लम्स, क्योंकि आपकी बाकी चीजें भी देख रहा होता है। लम्स और आईबी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लम्स आपका ओ लेवल्स भी देखता है कि आपके ओ लेवल्स के क्या ग्रेड्स हैं, और वो बहुत लम्स में रिगार्डलेस ऑफ द स्कोर दैट यू हैव, इफ यू हैव अ 1450 और 1500, बट इफ यू डू नॉट हैव वंस अगेन एटलीस्ट 5 A's in your O levels, तो लम्स आपको नहीं लेगा। दिस रिक्वायरमेंट isn't mentioned anywhere, just by the way, but if they ever come to your schools or your colleges, and if they ever do a Q&A session, they have the information session, so you can ask them in that Q&A session and they will tell you कि we have this requirement। और बाकी आप शायद कुछ टीचर्स जो कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स या यूनिवर्सिटी एडमिशंस का जिनको ऑलरेडी पता हो और who have been through the process, तो शायद वो आपको बता सकें। काउंसलर्स भी शायद आपको बता दें अगर वो इन्फॉर्म्ड हैं इसके ऊपर बेटा। बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड व्हेन इट कम्स टू द लम्स, तो आपके पास 5 A's जरूर होने चाहिए। लाइकवाइज मैट्रिकुलेशन में आपके पास अगर इफ यू डू नॉट हैव 80% इन मैट्रिकुलेशन, तो आपके चांसेस नहीं है लम्स के, रिगार्डलेस ऑफ द एसएटी स्कोर। हाँ, अगर आपको लम्स के कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में जाना है, सच एस एसीएफ में जाना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, लम्स में जिस बात पे बीबीए नहीं होता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे लम्स से बीबीए करना है, तो लम्स में बीबीए की डिग्री है ही नहीं। तो लम्स में एसीएफ है और मैनेजमेंट साइंसेज है। तो फॉर वन ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स यू नीड टू लुक एट 1350 प्लस एटलीस्ट। लेकिन फिर इसके साथ भी मैं आपको कहूंगा कि आपके बाकी ग्रेड्स वगैरह ज्यादा अच्छे हों। अगर आपका ओ लेवल्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आपके पास 5 A's हैं और बाकी 3 B हैं, या 5 A हैं, 2 B है, 1 C है, तो यू कैन मेक इट अप बाय डिसेंट एसएटी स्कोर। पर 5A 2B 1C के साथ 1350 फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा था। पर यू नीड टू लुक एट 1450, 1470, 1480, 1520, 1530 बेटा। तो यू कैन मेक अप फॉर योर दीज ग्रेड्स, अगर किसी के ये ग्रेड्स हैं, थ्रू दी एसटीटी स्कोर। लम्स के केस में ये पॉसिबल है। तो आईवी लीग्स का एक अलग केस है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज का एक अलग केस है, लम्स एक अलग चीज है। अब आईबी पे अगर हम आ जाते हैं, तो आईबी के लिए वी नीड एटलीस्ट 1270, 1270 फॉर द प्रोग्राम्स, बीबीए प्रोग्राम एज वेल एंड फॉर द बीएस प्रोग्राम। लेकिन दीज स्कोर्स क्वालिफाई यू फॉर द इंटरव्यू, लेकिन उसके लिए भी आपका ब्रेकअप 600 होना चाहिए दोनों सेक्शंस का। अगर ये नहीं है तो उसके बगैर फिर आपका नहीं होगा। एंड फॉर द डायरेक्ट एडमिशन, अभी राउंड 2 का एडमिशन हमारे पास 1400 भी हो जाता है, हुआ है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट दिस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए वी नीड टू एटलीस्ट ऑन द सेफर साइड, वी नीड टू लुक एट 1450 प्लस बेटा। तो आईबीए के लिए, आईबीए आपके ग्रेड्स नहीं देखता, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के देखता है। उसके बारे में हम आगे आएंगे। अभी हमने ओ लेवल्स, ए लेवल्स के या इंटरमीडिएट के ग्रेड्स या परसेंटेजेस की कोई भी बात नहीं करी है। बट वंस अगेन, इफ यू plans on sitting IBS test, or if any of you plans on going for the IB through the SCT route, तो आप ये याद रखिएगा कि IB का जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सा ब्रूटल होता है। और वो उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा इन अ वे एक थोड़ा सा ग्रिल भी करते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इंटरव्यू वाले राउट को अवॉइड कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉर द डायरेक्ट एडमिशन व्हेन इट कम्स टू द आईबीए। क्योंकि आईबीए के इंटरव्यू का अगर मैं थोड़ा सा आपको स्केच दूं, द क्लास रियली इजंट अबाउट द आईबीएस इंटरव्यू और द इंटरव्यू प्रोसेस, लेकिन दे स्टार्ट विद एन आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन के डिस्क्राइब योरसेल्फ, फिर इस प्रोग्राम में क्यों आना है उसको जस्टिफाई करेंगे क्यों आना है। एंड फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आते हैं फिजिक्स का बायो या फिजिक्स का मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं इंजीनियरिंग में क्यों नहीं जा रहा और मैं इसमें क्यों आ रहा हूँ। और they could use your grades against you as well। फॉर एग्जांपल, आपके पास मैथ्स फिजिक्स दोनों में ए स्टार्स है, अगर आपके एस के ग्रेड भी उनके पास पड़े हुए हैं, आपके पास दोनों में, इनफैक्ट फिजिक्स कैम मैथ्स तीनों में ए है आपके पास, अगर एएस में या और ओ लेवल्स में आपके पास ए स्टार है, तो दे वुड टेल यू कि यू आर एक्चुअली अ गुड फिट फॉर एन इंजीनियरिंग स्कूल, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो जस्टिफाई करें। और अगर आपके पास बिजनेस वाली पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इको बीएस के साथ आप जा रहे हैं और उसमें आपके ग्रेड्स अगर खराब हैं, तो वो कहते हैं कि भाई यू गॉट अ बी और यू गॉट अ सी इन बिजनेस और यू गॉट अ सी इन इकोनॉमिक्स, डू यू रियली थिंक यू शुड कम टू आईबी, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आईबी बोलता है कि अच्छा आप ये बताओ कि डिग्री तो क्लियर हो गई लेकिन आईबी क्यों आना है, कहीं और क्यों नहीं जाना, तो उसको जस्टिफाई करो।
इस तरह फिर वो फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आपको बोलते हैं कि अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स की में बताओ, अच्छा फिर मैथ्स की ये वाली थ्योरी हमें एक्सप्लेन करो, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। तो इस तरह आईबी का इंटरव्यू थोड़ा सा ग्रूलिंग होता है बेटा। तो आई वुड एडवाइज दैट यू गाइस अवॉइड इट एंड गो फॉर द डायरेक्ट एडमिशन व्हेन इट कम्स टू द आईबी। हाँ, अगर इंटरव्यू पे आ जाए तो फिर वो इंटरव्यू की भी हम फिर अगर इफ यू एनरोल हियर एट ट्यूटर प्लस तो फिर हम वो इंटरव्यू के प्रॉपर एक क्लास करते हैं कि इंटरव्यू के फिर क्या करना है। अच्छा बेटा, when it comes to the A levels percentage or the intermediate percentages, A levels grades, so we need to be 1C for LUMS and IBA both. Internationally, the better grades you have, the more chances you have. But at least कोशिश करें अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई करें तो मेक श्योर करें कि ये तो बेर मिनिमम है। अगर इससे अच्छे हो जाए तो वो तो ज्यादा ही है, लेकिन ये बेर मिनिमम है। इंटरनेशनली भी यूनिवर्सिटीज आपको इस पे भी ले लेती हैं। अगर आप यूके की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो तो आप वो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि 2D और 1U पे भी ले लेती हैं यूके की। बट मैं फिर उनकी एग्जांपल ये देता हूँ कि यूके में भी बहुत सारी इकरा यूनिवर्सिटीज हैं बेटा। तो बस आप देख कर जाइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ पढ़ने, लेकिन मेक श्योर कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि इफ यू डू नॉट प्लान ऑन स्टेइंग देयर एंड इफ यू प्लान ऑन कमिंग बैक, तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन सबको पता होता है कि इंटरनेशनली कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। तो ये जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, अगर इफ यू प्लान ऑन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, इफ यू प्लान ऑन वर्किंग हियर, so they do know the ranking of the respective university that you have graduated from। चाहे वो बहुत सारे बच्चे वो मलेशिया पढ़ने चले जाते हैं। अब बच्चे जब ये बाद में यहाँ पे आते हैं तो एम्प्लॉयर्स को सबको रैंकिंग पता होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी है। The same goes to the employers over there. So if you plan on staying there, after spending so much money, so once again, if you go to the job, so they would know कि यार इस बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाना भी है नहीं बुलाना। तो ये थोड़ा सा होमवर्क काइंडली आप अपना करके जाइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं बेटा। अगेन अगर आप यूके के लिए जा रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा यूके के कॉन्टेक्स्ट में एक बात करी थी। द अटेम्प्ट्स दैट वी हैव बेटा, एससीटी अगस्त के लिए हम तो नहीं कर सकते। नाउ वी हैव एससीटी अक्टूबर फॉलोड बाय नवंबर फॉलोड बाय दिसंबर। दिसंबर जो है वो आपके पास लास्ट ही अटेम्प्ट है अब इंटरनेशनली अप्लाई करने के लिए और लम्स के लिए भी अप्लाई करने के लिए। लम्स हैज नॉट बीन ऑफरिंग 2 राउंड्स नाउ। लम्स ने बीच में 2 राउंड्स ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब लम्स दोबारा से एक ही राउंड ऑफर कर रहा है। तो एससीटी दिसंबर इज द लास्ट अटेम्प्ट for any of you to appear for the LUMS to apply for the LUMS program, हाँ, unless you plan on taking the LCAT। लेकिन मैं LCAT against मैं या मेरे साथ अगर कोई और टीचर होगा who has been teaching for over a decade, वो LCAT इसलिए डिस्करेज करेंगे क्योंकि LCAT के लिए उनके पास बहुत कम लोग होते हैं। तो they do not have a lot of data with them to compare your scores with। SAT के scores बहुत सारे लोग सबमिट करते हैं उनको। तो इसलिए उनको पता होता है कि यार हाउ एग्जैक्टली यू नो this person has done as compared to the other students and how exactly whether this really would be a fit for our university or not। तो अगर आप एससीटी के थ्रू जाते हो तो यू स्टैंड फार ग्रेटर चांसेस। एलकैट भी बच्चे देते हैं, लेकिन एलकैट जो है आप समझे कि जो लम्स के एप्लीकेंट्स हैं उसका 5% एलकैट के थ्रू जा रहा है, 95% जो है वो एससीटी के थ्रू जाता है बेटा। If you plan on applying to the IBA beta, so again, the earlier you apply, the better it is because that of course leaves you with more chances। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को थोड़ा सा जो चीज़ नहीं पता होती, एक तो ये है कि आप अगस्त या अक्टूबर में अगर आप देते हैं तो आप फिर अर्ली एडमिशन्स की तरफ जा सकते हैं। And let's just say for those of you who have just started their AS or will be starting their AS in by next month, so it's advisable for you as well that you guys take out the ACT out of the way, and prepare on or focus on the rest of your application if you take the ACT either by October, December। अगेन मैं थोड़ा सा इसलिए मैंने कर रहा होता हूँ बिकॉज अभी इंसान को लग रहा होता है कि मैं दिसंबर में दे दूंगा, लेकिन जब बच्चों के मॉक्स होते हैं या मिड टर्म्स होते हैं तो फिर वो इसके साथ ओवरलैप करता है, फिर बच्चे एससीटी के स्कोर को खराब करते हैं स्कूल के मिड टर्म की वजह से। और फिर यही स्कोर आपका आगे भी जा रहा होता है। मार्च में बच्चे फिर इसलिए नहीं दे रहे होते, अभी बच्चे समझ रहे होते हैं दिसंबर में कि अभी तो मार्च भी टाइम है, लेकिन जब तक मार्च का टाइम आता है तो बच्चे कहते हैं सर अब तो मुझे जो है अपने मॉक्स की प्रिपरेशन करनी है, या मॉक्स हो रहे हैं या स्कूल ने मॉक्स जल्दी लेना शुरू कर दिए हैं, तो फिर मार्च खराब हो जाता है। तो अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप A2 में या इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर में ही हो, जो आपके पास बेस्ट टाइम है, इट इज डेफिनेटली एससीटी अक्टूबर। इफ यू डिडंट टेक द एससीटी, इफ यू फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑफ कोर्स इफ यू आर इन दिस क्लास, दैट डेफिनेटली मींस कि आप अगस्त में नहीं जा रहे हो, फिर अब आपके पास एससीटी अक्टूबर ही है बेटा। इफ यू प्लान ऑन अप्लाइंग टू आईबीए लम्स और इंटरनेशनली बेटा, आप बाद में भी जाते हो
लेकिन अगेन चीजें थोड़ी सी रिस्की हो जाएंगी फिर। इसमें एक और भी एस्पेक्ट है जो कि आपको याद रखना है थोड़ा सा, वो ये कि अगस्त की एटम में ग्रेडिंग थोड़ी सी और लीनियंसी के साथ होती है, अक्टूबर में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो अक्टूबर में ग्रेडिंग थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो जाती है। दिसंबर में ग्रेडिंग आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि उसमें आपको डेडलाइंस पूरी दुनिया से बचे अपेयर होके ग्लोबली जो है वो अब compete कर रहे होते हैं। अब इसमें एक और भी चीज आप याद रखिएगा कि देयर इज अ थिंग दैट वी कॉल एसटी स्कोर कर्व। जो कर्व डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कितने एप्लीकेंट्स हैं या कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं ये चीज के लिए। तो द मोर द एप्लीकेंट्स द टफर द कर्व विल बी। कर्व का मतलब ये है कि क्योंकि एसटी या कॉलेज बोर्ड ऐसे तो नहीं करेगा कि वो सबको 1600 दे दे, तो जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो फिर वो मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्टली कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सबको तो सीट्स नहीं देंगे। अगर सबके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज कहेंगे कि आपके टेस्ट की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सबके बड़े अच्छे स्कोर आ गए। तो एक चीज बेस्ट टाइम हमेशा हम बच्चों को ये कह रहे होते हैं कि द बेस्ट टाइम इज दिस, द सेकंड बेस्ट टाइम इज दिस, एंड देन फॉलोड बाय दैट अब एसटी नवंबर की अटेम्प्ट भी, ये सेकंड ईयर के एसटी नंबर ऑफर कर रहा है। पहले करते थे 2017 तक करते थे, फिर 2018 से बंद हो गया था, और उसके बाद फिर एसटी डिसने मेरा बेटा। एक और चीज मैं बेटा थोड़ी सी आप लोग को बता देता हूँ कि एसटी does not stand for standardized aptitude test, it stands for scholastic aptitude test। ये टेस्ट जो है ये इटसेल्फ बाय नेचर स्टैंडर्डाइज है। बहुत सारे बच्चों को स्टैंडर्डाइज की मीनिंग नहीं क्लियर होती कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज की मीनिंग क्या है। तो स्टैंडर्डाइज बेसिकली मीन्स कि हर कोई जो है he or she is being tested on the same things, on the same principles, on the same things। अब डिजिटल एससीटी जो है वो थोड़ा सा एक अडेप्टिव टेस्ट है, लेकिन ये सेक्शनली अडेप्टिव है। अब अडेप्टिव की मीनिंग भी बहुत सारे बच्चों को अभी तक डी सेट के लिए क्लियर नहीं है, और सेक्शनली अडेप्टिव क्या होता है ये मीनिंग भी क्लियर नहीं है। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट 5 minutes। तो आई नीड यू गाइस टू पे अटेंशन बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इवन द टीचर्स डू नॉट नो वेरी क्लियरली अभी तक। तो इसको बड़े अच्छे से आप समझिएगा कि मैं अडेप्टिव की मीनिंग आपको क्या क्लियर कर रहा हूँ, एंड देन whatever question that you guys may have, so I'll be taking that। तो अभी बेटा मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अब जो एसईटी है हमारे पास वो एक अडेप्टिव टेस्ट है। अडेप्टिव का मतलब ये है कि योर परफॉर्मेंस ऑन वन सेक्शन will decide the difficulty level for the next section। अब इस बात को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। So let's just say if you got 22 MCQs there in your module 1 which you would, and if let's just say if you get 16 of these rights, और ये मैंने नंबर एक hypothetical number है, this 16 is a hypothetical number as in ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, it's based on assumptions। So these 22 questions will be on a normal difficulty। So let's say if you get 16 of these rights, so that's gonna make the college board's algorithm, algorithm किसे कहते हैं हम, ओके ये मैंने नहीं बताया आपको, माय बैड। हम अब एसईटी बेटा जो एक ब्लू बुक एक सॉफ्टवेयर है, हम उस ब्लू बुक सॉफ्टवेयर पे एसईटी देते हैं। तो यू वुड हैव दिस सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड इन योर लैपटॉप ऑलरेडी। आपके लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। आप उस सॉफ्टवेयर पे जाओगे और आप उस सॉफ्टवेयर पे लॉग इन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल के ब्लू बुक के ऊपर आप अपना एसईटी दोगे। तो वंस अगेन मैंने लैपटॉप की बात पहले भी करी, सो इफ यू डू नॉट हैव वन सो यू कैन लेट कॉलेज बोर्ड नो कि यू विल बी बोरिंग ए लैपटॉप विद फ्रॉम देम। लैपटॉप की भी हमें फिर देखना पड़ता है कि हमें आप हमने चार्जिंग उसकी प्रॉपर है, पूरे इतना लास्ट कर सकती है कि हमारे एग्जाम में ट्रबल तो नहीं होगी। चार्जिंग केबल हमें लेके जानी होती है, वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम बाद में कभी आएंगे जब हम हमारा एग्जाम करीब आएगा, तो वो डिस्कशन हम तब करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बेसिकली हम सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर का एक एल्गोरिथम होता है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिथम है। आप फॉर एग्जांपल बिजनेस के ऊपर रील्स देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बिजनेस की रील्स आएंगी। अगर आप स्पोर्ट्स की रील्स देखेंगे तो आपका कंटेंट वो एल्गोरिथम मॉडिफाई होके वो आपको स्पोर्ट्स का कंटेंट दिखाएगा। तो 16 आउट ऑफ 22 आपके पास एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास करेक्ट हो जाते हैं, सो दैट एक्चुअली मेक्स द सॉफ्टवेयर नो, that lets the software know that you are actually a good student, और आपका मॉड्यूल 2 जो है वो डिफिकल्ट होगा, या मॉड्यूल 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट होंगे। अब याद रखिएगा कि यू हैव
2 modules for English, 2 modules for maths. तो पहले 2 रीडिंग या राइटिंग के मॉड्यूल्स होते हैं या इंग्लिश के मॉड्यूल्स होते हैं, followed by that we have 2 modules for maths. So if you get 16 questions right out of 22, so that's going to let the software think कि you're actually a good student, और आपका मॉड्यूल 2 डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फिर आपको, एंड अगेन अगर आपके 16 आउट ऑफ 22 करेक्ट हो जाते हैं तो आपका फॉर एग्जांपल स्कोर आ जाएगा 640. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. अब किसी के अगर 15 आउट ऑफ 22 एमसीक्यूज करेक्ट होते हैं तो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर को लगेगा कि 16 से नीचे किसी के भी करेक्ट हो रहे हैं तो ये एक एवरेज स्टूडेंट है या ये इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है. तो आपको मॉड्यूल 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी होंगे. वंस अगेन, अब आपने अगर 16 आउट ऑफ 22 आपके करेक्ट हो जाते हैं, काइंडली पे अटेंशन टू दिस. वंस अगेन इफ यू गेट 16 आउट ऑफ 22 राइट, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि अब आपके जो क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं वो इजी हैं. तो अब आपका जो स्कोर है वो 580 से 590 के बीच में वेरी करेगा. क्वेश्चन में पॉप अप इन योर माइंड कि सर यहाँ पे भी 16 करेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी 16 करेक्ट हो रहे हैं, यहाँ स्कोर तो 640 आ रहा है, यहाँ स्कोर 580 से 590 क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 था वो हार्ड था, यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 है दैट्स इजी. तो कॉलेज बोर्ड आपको डिफिकल्टी के लिए भी कॉम्पनसेट करेगा. सो इफ यू आर गेटिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस राइट तो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे. अगर आपके इजी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे. तो ये भी बात आपने याद रखनी है. इसी को हम कहते हैं अडेप्टिव. तो द परफॉर्मेंस ऑन योर फर्स्ट मॉड्यूल directly correlates to the scoring and the difficulty level in the module 2. So if you do well in your first module, so the difficulty level of the questions in the second module will be high, and of course that will reflect in the grading and in the scoring as well. तो अगर आपको मॉड्यूल 2 भी इजी लग रहा है तो चांसेस यही है कि आपके मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस ही इनकरेक्ट हुए, इसलिए आपको मॉड्यूल 2 आसान लग रहा है. और फिर अगर मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस तब भी आपके इनकरेक्ट हो गए तो फिर स्कोर अच्छा नहीं आएगा बेटा. सो दैट्स हाउ द अडैप्टिव रियली मींस. बेटा यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो प्लीज बी वोकल अबाउट इट, एंड इफ इट्स क्लियर टू यू यू कैन सभी थम्स अप देयर ऑन द चैट, या आप अपनी यहाँ पे भी कहीं पे भी आप थम्स अप कर दें, आप ग्रुप पे थम्स अप कर दें, आप जूम की विंडो के ऊपर भी यहाँ पे थम्स अप कर दें. तो दैट्स इट. फिर हम आगे चलते हैं. जी मेरे बेटा प्लीज आस्क व्हाटएवर क्वेश्चंस यू मे हैव. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, my question is about the calculators. Are we जी बेटा, the are we calculators are now in for the number. are we allowed to bring our own like physical calculators? Better, the calculators are now enabled in the Blue Book app as well. Also, you can take your own calculators with yourself. Okay, Okay. okay. Thank you, sir. एक calculator list है that the college board has prescribed, so we're only allowed to take those calculators with ourselves. ठीक है, तो it isn't like we can just take any calculator. There's a list of them, but usually a lot many students have those calculators already, so we do not need to worry about the list or the calculator that we're taking because most of us have the Casio calculator, so we can use that better. Just by the way, there's a list of the calculator that the college board has already announced, and also there's a built-in calculator in the Blue Book app as well. But since all of us are more convenient or more used to using our own calculator and use it more conveniently, so I recommend that you guys take your own calculator with yourself. Beta. जी नौफल बेटा प्लीज आस्क. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर, if module 2 is easier तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने चाहिए उसमें. Like you will be able to answer more questions, right? ये देखिए, इसका मतलब ये है कि अडेप्टिव का मतलब ये होता है कि एक पूल ऑफ क्वेश्चन है उनके पास, तो वो डिसाइड करेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस देने हैं वो इजी देने हैं या हार्ड देने हैं. तो जो मॉड्यूल 2 का जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिपेंड करे आपकी परफॉर्मेंस पे, दैट हाउ एग्जैक्टली यू परफॉर्मिंग ऑन योर फर्स्ट मॉड्यूल. सो इफ यू गेटिंग हार्डर क्वेश्चंस राइट, तो वो जो बच्चा जो कि इजी क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो जो उसके हार्ड सही हो रहे हैं, तो ये हार्ड वाले बच्चे तो ही विल बी एट सम सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज देन ना, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चंस भी सही कर रहा है, ये वाला बच्चा इजी क्वेश्चन सही कर रहा है. तो इसके मार्क्स और इसके मार्क्स दे रियली वोंट बी द सेम. तो कॉलेज बोर्ड इस बच्चे को ज्यादा मार्क्स इसलिए दे रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग हार्डर क्वेश्चंस राइट. इस बच्चे को मार्क्स कम मिल रहे हैं बिकॉज ही इज गेटिंग इजियर क्वेश्चंस राइट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट. लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि यहाँ पे आपने
पहले मार्क्स लूज बहुत ज्यादा कर दिए। इसकी वजह से आपकी ओवरऑल ग्रेडिंग अफेक्ट हुई है, क्योंकि दोनों मॉड्यूल्स के कंबाइंड स्कोर आते हैं। तो इफ यू सेइंग सर यहाँ पे बच्चा देखें 16 आउट ऑफ 22 कर है तो उसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे यहाँ पे उसने बहुत बुरा करा है, दोनों के कंबाइंड स्कोर आता है बेटा। आर वी क्लियर नॉफल? Yes sir. Okay. जी ईमान बेटा, प्लीज डू आस्क। Sir, if we sit for the October series for the SAT, how long would it be before the test results come out? But it usually takes 2 weeks till the result. 2 weeks. Let's just say if you take the SAT on 5th of October, your result will be out by 19th. अच्छा बेटा, मैंने अडेप्टिव की मीनिंग क्लियर कर दी है। मैं थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप्स पे एक बहुत कॉमन से क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटीज रियली ऑफर एज द स्कॉलरशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एसीटी। सो आईबी का एक प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल अब राउंड 2 के लिए भी के टेस्ट के बाद भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यू कैन अप्लाई टू द यू कैन अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये स्कॉलरशिप नहीं है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। स्कॉलरशिप कुछ और होती है बेटा। आईबीए में स्कॉलरशिप नहीं होती है, आईबीए में फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। सेम गोes for LUMS as well. IB and LUMS will never be rejecting your admissions on the basis of your financial conditions. हाँ, लेकिन मैं इस साल से एक चेंज हो गया है कि लिटरली हर बंदा because of the inflation and everything that's happening in the country for the past some years now, हर बंदा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। तो हाई भी हर बंदे को स्कॉलरशिप नहीं दे सकता, या हर बंदे को इतनी स्कॉलरशिप नहीं दे सकता कि वो बिल्कुल आईबीए फिर कैसे चलेगा। आईबीए इज अ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, लम्स इज अ टोटली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। लम्स एक सेमी गवर्नमेंट मतलब कि उनको गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिलती है, उनके डोनर्स बहुत ज्यादा हैं अगर मैं आईबीए की बात करूं। लेकिन हिस्टोरिकली द टू यूनिवर्सिटीज हैव नॉट refused any admissions on the basis of the financial ability of the student, but they both require you to first clear their tests, get the admission, then only will they be hearing anything about this financial assistance. It isn't like कि आप आज से ही बोलें कि लम्स को बोलें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें फिर मैं अप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आईबी एंड लम्स they both require you to first clear their tests, take the admission, and then only will they be hearing anything about the financial assistance part. When it comes to the state universities, again, you do get a lot of scholarships on the basis of the SAT scores in a lot many states universities. Ivy Leagues में भी मिलती हैं, लेकिन सीट्स होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, and for that, of course, like I said, कि हमें प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है. So if you have that, so you stand chance or a good chance of getting in there, बेटा. Canada में there aren't any university that would require you to take the SAT for the scholarships. हाँ, you can mention your SAT scores there, but कोई requirement नहीं. Same goes for the Australian universities. They do not require you to take the SAT. कोई requirement नहीं. Though you can mention it, they do know what SAT is, but there's no such requirement for you to take the SAT. टर्की में बहुत ज़्यादा universities आपको scholarship देती हैं on the basis of your SAT score. UK में they do not need you to take the SAT beta at all. थोड़ी सी बेटा मैं अगर आप क्या मैं 5 लेना चाहूंगा बिकॉज मुझे कुछ आगे बताना है एंड इट टाइज टू दैट कि इतनी बात हमें देखें, हम वी कीप हियरिंग अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट द एसईटी। तो मैं थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन से कि एसईटी का स्कोर जो है बेटा टेंड्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ कोर्स बिकॉज यूनिवर्सिटी के बाद वी ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो मेक श्योर करें कि आप इन 3 मंथ्स को या पूरे टाइम को एक बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि if you end up in a good university, let me tell you what happens in a good university. So if you end up in a good university, so what happens is that the employers are usually reaching out to you because they already know that you belong to a particular university, and you start getting the job offers in the next 3.5 years or 3 years. In any of the undergrad program, you would have 8 semesters. So you already start getting offers in your 7th semester.
and you still have 6 months to go or more than 6 months to go before your degree finishes and you already have a job secured. अब flip side पे आप देखें, I'm sure you would know not many of the people who have graduated from different universities. Some have been graduated for 6 months, a year, and they do not have a job yet. So if you end up in a good university, so that part is secured. लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अगेन मेहनत करके पहले एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है. अगेन एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाना इज नॉट इनफ, वहां पे जाके भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट कि आपको जीपे के लिए क्या करना है, अच्छी इंटर्नशिप्स के लिए क्या क्या करना है, अच्छे peers के लिए क्या करना है, अच्छे टीचर्स के लिए क्या करना है. दैट्स द वेरी लेंथी एंड डिफरेंट डिबेट. just make sure करें that you're actually making the most of this time and getting a good score, क्योंकि इससे आगे की सारी चीजें पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, और फिर उसके बाद की सारी चीजें यूनिवर्सिटी से रिलेट करती हैं. बीट योर जॉब, बीट योर पर्सनल लाइफ में भी ऑफ कोर्स बहुत आपका चेंज आ जाता है इफ यू एंड अप इन अ गुड यूनिवर्सिटी. तो वो फिर टाई बैक करती है आपकी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपका अगर आप कभी आपका कोई भाई यूनिलीवर में काम करता हो और कभी आप उनको रिक्वेस्ट करके बोलेंगे भाई मुझे समहाउ अगर आपसे मिलने आना है यूनिलीवर, इफ दे लेट यू, तो कभी आप वहां जाके एक एनवायरनमेंट देखें, तो you would actually feel like working for this place and you would want to actually go there, end up there. आपको इतना अच्छा एक चेंज आएगा and you would want to be one of them, और आप कहेंगे कि यार मुझे यहाँ आना है, मतलब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, I'll do everything to end up here. तो अगर आपको मैं क्यों कहूँ कि अगर आपको एक सोशल क्लब में एंड अप होना है, अब मैं क्लब इन अ गुड सेंस यहाँ पे कह रहा हूँ, या सोशल सर्कल में एंड अप होना है, तो आप देखेंगे कि बात करने की तमीज़ अलग है, बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल आई वुड से कि एक एनवायरनमेंट से ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपकी जो अपनी पर्सनल अपब्रिंगिंग हो रही होती है, जो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, और वो दिख रहा होता है आपको कि ये लोग बहुत एक प्रॉपर एक अच्छे चैनल से आए, मेहनत करके आए. तो इससे ना सिर्फ यूनिलीवर नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी. So I'm not gonna limit myself here to the Pakistan only. तो आप कहीं पे भी जाएंगे, तो that's how it really works. If you end up in a good university, so you're really reached out by the employers while you're still studying, and you still have a job secured, and you have a job secured before you finish your degree. लेकिन ये अगेन होगा तब अगर हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे. तो regardless of where you study, be it Pakistan or abroad, make sure कि आप अब्रॉड भी कहीं जाएं तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो बेटा. थोड़ा सा बेटा मैं एक और भी इसमें बात बता देता हूँ जो कि सिमिलर है, कि आपके पास एकेडमिक लाइफ में जब आपके टहनी स्टार्स आए थे, तो यू वर द किंग एंड यू डिसाइडेड कि विच ऑफ द यूनिवर्सिटी और विच ऑफ द कॉलेजेस यू वुड गो टू. आप कस्टमर थे, आपके थे, सेलर कॉलेज था. प्रोफेशनल लाइफ में ना देखें, आप बायर नहीं है, अब आप सेलर हैं. बायर एम्प्लॉयर है, वो हो सकता है आपको बुलाए या हो सकता है वो आपको ना बुलाए. दे मे नॉट इवन पे एनी अटेंशन टू योर सीवी एट ऑल, दे मे इवन डिस्कार्ड योर सीवी एट ऑल. तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए अभी से काम करना है, क्योंकि एज आई डिस्कस कि अगर बच्चे हमारे पास आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान वो यूनिवर्सिटी की प्लानिंग को ग्रेड 8 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग के पास कल्चर क्या है कि मैं अपनी पहली इंटर्नशिप ही तब करूंगा जब यूनिवर्सिटी खत्म होगी. अब वो कल्चर चेंज हो रहा है. even though people, what I recommend is that people should have at least 4 internships while they're doing their A levels, ताकि यूनिवर्सिटी को पता चले कि मैं सीरियस हूँ इस डिग्री के लिए. और यूनिवर्सिटी आर एक्चुअली आस्किंग पीपल, गुड यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कि वेदर यू गेन एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन दिस डिसिप्लिन और नॉट. तो वो पूछते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रॉपर एक क्वेश्चन मेंशन करा हुआ है. तो कोशिश करें कि आप बेटा इसके लिए अगेन थोड़ी सी एफर्ट जरूर लगती है एक अच्छे एसटीटी के स्कोर के लिए, बट उससे आपकी बहुत सारी चीजें आगे की सिक्योर हो जाती हैं बेटा. कुछ और यूनिवर्सिटीज बेटा दैट रिक्वायर यू टू टेक द एसटीटी वुड बी सीबीएम. ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं अगर आप जैबिस में जा रहे हैं, आप हबीब में जा रहे हैं, आप नस में जा रहे हैं, आप फैस में जा रहे हैं. नस के लिए भी, लेकिन नस का बिजनेस स्कूल, नॉट द इंजीनियरिंग स्कूल. तो ये आपके पास ये यूनिवर्सिटीज हैं दैट रिक्वायर यू टू टेक द एसटीटी, और if they do not require you to take the SATs, so they would at least accept the SAT. तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके पास SAT एक्सेप्ट करती हैं. कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि अगर आपके पास, क्योंकि आई कीप हियरिंग दिस क्वेश्चन, और अभी शायद Q&A सेशन में भी आप लोग में से कुछ ये लोग पूछ लें कि सर मुझे लगता है कि SAT के लिए क्या पढ़ना नहीं
पढ़ता है, या मैंने सुना है, या मैंने पीयर से ये सुना है, या मैंने काउंसलर से ये सुना है। यू रियली हैव टू स्टडी फॉर दी एसटी। ऐसा नहीं है कि एसटी के लिए नहीं पढ़ना पड़ता, एसटी के लिए पढ़ना पड़ता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दैट इन अ वे बैकफायर्स, और फिर हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हम एसटी के लिए नहीं पढ़ते। तो एसटी के लिए पढ़ना पड़ता है, तो उसको दिमाग से निकाल दो कि एसटी के लिए नहीं पढ़ना पड़ता। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव टेस्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट एज वेल। जस्ट बाय द वे लग रहा होता है आसान है, लेकिन आसान नहीं है। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि सर मेरे पास तो सी है वो लेवल्स की मैथमेटिक्स में, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ? सो रिगार्डलेस ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आप चाहे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं या जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे वांटेड टू बिकम डॉक्टर ऑल देयर लाइव्स, and then somehow they did not end up in their desired medical schools, and then they decide to take the SCT, and then they take the SCT। तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, and they go on to do pretty well, and they end up in IB or LUMS as well। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि all their lives they wanted to become doctors, and then ऑफ कोर्स उनके लिए मैथ्स पढ़ने में उनको बहुत ट्रबल होती है, बट दे गो ऑन टू डू वेल। तो आप भी बिल्कुल चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक और भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर मुझे लगता है, या मैंने सुना है, या मेरे दोस्त कहते हैं, एक तो दोस्त वाला जो पार्ट है उसको तो यू नीड टू बी बिट केयरफुल देयर, कि दोस्तों से इतना मत सुनना, क्योंकि दोस्तों को एक्सपीरियंस नहीं होता। दे हार्डली नो एज मच एज यू डू बेटा, कि सर जितना भी पढ़ लो एसटी में स्कोर नहीं आता, तो ऐसा नहीं होता बेटा। एसटी में बहुत सारे लोग हैं, दे एंड अप, आई एम श्योर यू वुड नो, दे एंड अप विद वेरी डिसेंट स्कोर्स। ऑल इट रिक्वायर्स इज द हार्ड वर्क। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। If we were to talk about the timeline of the course that we're going to be following here for our class, it would be like this. So by first week of September, we'll be done with everything, literally everything. उसके बाद सिर्फ हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और उसके ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर जो डिस्कशन होती है वो होगी। तो फुल लेंथ टेस्ट एंड डिस्कशन। तो बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर विल बी गेटिंग डन विद एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द कोर्स एंड क्वेरीज एंड एवरीथिंग। और फिर हमारे पास सिर्फ टेस्ट हो रहे होते हैं। वी आर मॉनिटरिंग किसको कहाँ जाना था, किसका क्या डिजायर्ड स्कोर है, किसको फर्दर किस किस चीज में लैकनेसेस हैं, अभी तक लैकनेस हैं, और किसको किस चीज पे अभी हैं। उसमें कुछ चीजें जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में हो रही होती हैं, कुछ चीजें आप वन एंड वन डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर मेरी ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है, मुझे ये चीज बता दें। मुझे फॉर एग्जांपल इंटरनल पंक्चुएशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, इसको मुझे आप प्लीज इस एग्जांपल को जरा मुझे बता दें। तो बहुत सारी चीजें वो हम इस टाइम फ्रेम में होते हैं बेटा। एक और चीज भी है बेटा, और आई बिलीव के, और इफ यू शुड हैव अ क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू दिस, क्योंकि it's as important as talking about how to get a good score, but it's important we talk about how to get a bad score as well, क्योंकि वो क्लियर होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि यार I'm not just gonna be another brick in the wall, so I need to know if I'm putting the right kind of effort for the SCT। So if you lack the discipline for some reason, आप SCT में enrolled हो गए हैं, पेरेंट्स के कहने पे, पीयर्स के कहने पे, काउंसलर्स के कहने पे, या आपको पता है कि यार एक ऐसी चीज होती है जिसको हम एसटी कहते हैं और वो दिया जाता है, तो इसलिए एसटी दे के देखते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी देते हैं तो इसलिए मैं भी दे देता हूँ। लेकिन इफ यू डू नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, तो यू वॉन्ट एंड अप विद अ गुड स्कोर ऑन द एसटी बेटा। लाइकवाइज इफ यू लैक द स्ट्रेटेजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि वो डी सैट के लिए प्रिपेयर तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो फॉलो पुरानी चीजों को कर रहे होते हैं जो कि पेपर पर जब एसटी था। तो इससे आपका एसटी पर एक अच्छा ऑफ, if you have a wrong strategy, if you do not know कि which directions you need to head into, तो फिर आपका एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है बेटा। परसिवरेंस भी किससे कहते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं कि परसिवरेंस कहते हैं कि आप you keep falling down, the ability to get up and sit back on the saddle is what we define as perseverance। आपको बहुत लगेगा कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, या मेरा एक अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो देखिए, सिर्फ अच्छा स्कोर उनका ही आता है जो अपने स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं। यू नीड टू बी एबल टू कंट्रोल योर स्कोर, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी एबल टू पुट इन द राइट काइंड ऑफ एफर्ट एज वेल। तो परसिवरेंस इसलिए कहते हैं कि आपको टेस्ट प्रिपरेशन में ना, आप एंजाइटी थोड़ी सी होती है, आप एंशियस बहुत हो गए, तो उस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इज व्हाट वी डिफाइन एज परसिवरेंस। तो अगर आप
परसेवरेंस नहीं है अगर आपके अंदर, इफ यू आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करा, परसेवरेंस इस तरीके, इसको भी मैं कहते हैं कि आपने एक हफ्ता बहुत पढ़ लिया, फिर 2 हफ्ते आपने एसईटी को छोड़ ही दिया, एज इफ एसईटी डज नॉट इवन एग्जिस्ट, फिर आपने 3 दिन पढ़ लिया, इसको भी हम प्रेजेंट्स कहते हैं। तो आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है, डिस्पाइट एनीथिंग आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऑफ कोर्स कुछ और भी चीजें जो मैटर कर रही होती हैं, उसमें एक टीचर का एक्सपीरियंस होता है। आई एम श्योर आपको भी पता है कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा ओ लेवल्स के इंस्टीट्यूट्स एसईटी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें बच्चे पढ़ा रहे हैं। अगेन कितनी रेलेवेंट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बी सेट का एक तो बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है, so we've been working for almost 2 years to write a lot of content for DSET. Alhamdulillah, we have a lot of content written so far. लेकिन मैं कितनी रेलेवेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेलेवेंट प्रैक्टिस का एक मीनिंग मैंने यहाँ पे भी बताया था। बहुत सारे बच्चे खान एकेडमी को समझते हैं कि कोई कॉलेज बोर्ड का कंटेंट है, तो ये आप, खान एकेडमी इज नॉट द सेम एज कॉलेज बोर्ड। तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, या हम जितनी भी प्रैक्टिस ट्यूटर प्लस में कर रहे होते हैं, हम कॉलेज बोर्ड के कंटेंट से कर रहे होते हैं, हम खान एकेडमी के कंटेंट से नहीं करते, बिकॉज खान एकेडमी का कंटेंट कॉलेज बोर्ड ने नहीं लिखा है। The problem with Khan Academy or any of these other publishers is the same, कि वो deviated हो जाता है थोड़ा सा, या तो उसका डिफेक्टिव लेवल ज्यादा होगा या तो कम होगा। It's not gonna be the same as the college board, or the way that they are asking the question is not gonna be the same as the college board बेटा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है आप अगर थर्ड पार्टी मटेरियल से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो थर्ड पार्टी मटेरियल को मैं भी अवॉइड करता हूँ, और एक जनरल ओपिनियन जो सीनियर टीचर्स हैं उनके बीच में यही है, और मैं सीनियर टीचर्स एसटीटी के पाकिस्तान में तो बहुत ही कम होंगे, लेकिन मैं जनरली आपको बात कर रहा हूँ कि जो ग्लोबली, जिन्होंने अपनी पूरी लाइव्स एसटीटी को पढ़ाने में लगाई, दे टेल यू द सेम थिंग कि आप कॉलेज बोर्ड के कंटेंट को प्रेफर करें और इसी से चीजें करें। एंड व्हेन आई से कॉलेज बोर्ड, आई डू नॉट मीन द 6 ब्लू बुक पेपर्स दैट यू सी ऑन द ब्लू बुक ऐप। बहुत ज्यादा और भी कॉलेज बोर्ड का कंटेंट है जो कि पुराने मटेरियल से रिफ्लेक्ट, या पुराने पेपर से जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कि पेपर तो चेंज हुआ है, डी सेट पेपर, लेकिन कंटेंट या द वे दे यूज्ड टू आस्क द थिंग, उसमें इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें सेम हैं, मैथ्स में भी एक चेंज आया है, एक टॉपिक खत्म हो गया, बाकी टॉपिक्स वही हैं। तो अगेन, इफ यू बिन प्रैक्टिसिंग, तो मेक श्योर दैट यू बिन मेकिंग द मोस्ट ऑफ द कॉलेज बोर्ड कंटेंट। बाकी सारी चीजों से प्रैक्टिस ना करें, बिकॉज वो एक्यूरेट नहीं है। कम्युनिकेशन गैप इज ऑल्सो वन ऑफ द की एरियाज। अब हमारे पास क्या होता है कि फॉर एवरी स्टूडेंट वी हैव 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स। एक होता है जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, एक होता है हर बच्चे के साथ हमारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ये होता है कि आपको जो भी इशू होता है, या तो टीचर खुद आपसे पूछ रहा होता है आपकी प्रोग्रेस, या आप खुद टीचर को बता रहे होते हैं, और आपका जो भी इशू होता है वो वहीं ऑन स्पॉट आपकी डाउट रेजोल्यूशन हो रही होती है। आप पूछ रहे होते हैं कि सर ये आपने क्लास में समझाया था, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग द टीचर आउट इन द नेक्स्ट क्लास, आप वो फॉरन उसको उसी वक्त पूछ लेते हैं, टीचर आपको उसी वक्त बता देता है। तो ये हमारे पास एक और भी चीज़ है कि हमने कम्युनिकेशन गैप को इस तरीके से एलिमिनेट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट 9 years नाउ, कि मेरे पास मेरे जितने भी बैचेज हैं, चाहे उनको मैंने जब भी पढ़ाया हो, सो आई हैव दिस वन बेसिक रूल कि आपको रोज मुझे अपडेट करना है कि व्हाट एग्जैक्टली यू बीन स्टडीइंग इन टर्म्स ऑफ एसईटी। आपको मुझे वो रोज बताना है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो ये, बिकॉज आई बिलीव कि इस एक एक सिंगल फैक्टर की वजह से हमारे पास 100 से 150 पॉइंट्स का एक इम्प्रूवमेंट क्रिएट होती है। सिर्फ इस फैक्टर की वजह से इतनी इम्प्रूवमेंट क्रिएट होती है, और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से और इम्प्रूवमेंट क्रिएट होती है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ एक इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास जो है इम्प्रूवमेंट क्रिएट होती है। बिकॉज बच्चे को पता होता है कि यार टीचर वहाँ पे है और रिप्लाई करे। बच्चे को ये भी पता होता है कि यार मुझे पढ़ना है, और टीचर को मैं आंसरेबल भी हूँ, टीचर मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कि आज तुम क्या कर रहे हो, तुमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। तो वो फिर बच्चा खुद भी प्रोग्रेस करना चाहता है, तो वो सिर्फ क्लासेस नहीं ले रहा होता, क्योंकि आप सिर्फ अगर क्लासेस लोगे ट्यूटर प्लस में भी आके, एंड इफ यू होप कि आपका एक अच्छे स्कोर आ जाए, तो वो क्लासेस लेने से नहीं आएगा, यू हैव टू स्टडी फॉर इट। अच्छा बेटा, द टाइमिंग्स दैट वी आर गोना बी फॉलोइंग वुड बी दिस। जो आपका वाला जो बैच है बेटा, ये बेटा कुछ जगह पे एक्सटेंड होगा।
की वजह थोड़ी सी ये है कि हमारे पास एक नमाज का ब्रेक आएगा, इसमें मगरिब का भी आएगा, तो हम ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे डिपेंडिंग अपन द नमाज ब्रेक, हमारे नमाज में कितना टाइम जा रहा है। यूजुअली 10 मिनट्स का नमाज का ब्रेक ले रहे होते हैं, अभी भी हम लेंगे, तो उसका हमें जो है थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। और सर आपसे कुछ जी बेटा। क्वेश्चंस करने थे। मैं लेट आया हूँ, इसके लिए सॉरी। कुछ क्वेश्चंस करने थे, जी मैं अगर आप बस बेटा समरी एंड में बता करेंगे, दें। अभी एंड में एंड में करेंगे, और क्वेश्चन। आपकी रिकॉर्डिंग ले लेना बेटा, समरी तो नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज्यादा बात है। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, डी सैट इज फॉर 2 hours and 14 minutes जस्ट बाय द वे, एंड देयर इज नो ऐसे, हमारे पास लास्ट वर्जन ऑफ द एसएटी में भी ऐसे जो है वो बीच में खत्म हो गया था। एक कॉमन क्वेश्चन दैट आई कीप गेटिंग इज कि सर ये डिजिटल एसएटी क्या बहुत इजी है? तो आप, इसका एक ही जवाब है कि आप एक जो है पेपर दे के अपीयर करके उसमें पेपर में हो जाएं, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दे दें, खुद से दे दें, एंड यू सी कि हाउ मच यूर स्कोरिंग, एंड दैट वुड एक्सप्लेन वेदर यू नो आपको आसान लग रहा है या आपको मुश्किल लग रहा है, आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ईजी है, ये एक डिफिकल्ट पेपर है। ये इजी इसलिए नहीं हो सकता कि अगर सबके स्कोर्स अच्छे आने लग जाएंगे तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर बता रहा हूँ कि वो लूज हो जाएगी बेटा। तो इट्स नॉट एन इजी पेपर जस्ट बाय द वे, इट्स अ डिफिकल्ट पेपर। अच्छा बेटा, कुछ और चीज़ें आपको समझनी है तो आप प्लीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास, इफ़ यू बिन टेकिंग द क्लासेस, देखिए हमारे पास हिस्टोरिकली अगर कोविड के बाद आप देखेंगे तो अब ये परसेंटेज बहुत चेंज ही होती जा रही है। तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द स्टूडेंट्स वी हैव आर ऑनलाइन, ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप फिजिकल क्लासेस लेते हो तो आपको सारी चीज़ें फिर वो होमवर्क वगैरह, हमारे पास थोड़ा सा ये है कि आपको होमवर्क वगैरह के ऊपर हम लोग आपको थोड़ा सा फॉलो कर रहे होते हैं कि बेटा ये होमवर्क कर लिया, नहीं हुआ, कब तक हुआ, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इज कि जो पंचुअलिटी वाला एक फैक्टर है और वो जो एक ये वाला फैक्टर है कि आपको हमें फॉलो करना है या हमें आपको फॉलो करना है ऑन द थिंग दैट वी शुड डू, उससे बहुत एक स्कोर थोड़ा सा जो है ना दैट रियली गोज ऑन टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप अगर एक ऑन कैंपस स्टूडेंट हो तो आपको हम होमवर्क वगैरह हम कहते हैं कि आपने ऑन कैंपस ही सबमिट करना है। विद ऑनलाइन स्टूडेंट वी से इट नीड्स टू बी ऑनलाइन बेटा। अब बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज दे रहा हूँ, तो जस्ट इन केस इफ, अच्छा एक और चीज़ मैं सुपर स्कोर की एक बात रह जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज आई कीप गेटिंग दिस क्वेश्चन अगेन। सुपर स्कोर क्या होता है बेटा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगस्त में भी अटेम्प्ट करा है, अक्टूबर में भी अटेम्प्ट करा है, जैसे इफ यू गेट अ 720 इन द इंग्लिश, 700 in the maths, and if you get 710 in the October and 780 for the maths, तो अब आपका स्कोर क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए सुपर स्कोर की कहते हैं कि आप ग्रेटर ऑफ द टू स्कोर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 720 आया है, यहाँ पे आपका 780 आया है, तो अब आप जो अप्लाई करोगे वो आप दोनों के हायर ऑफ द टू से करोगे, तो योर स्कोर हियर इन दिस केस विल बी 1500 एंड you'll be applying there with a score of 1500 बेटा। अच्छा बेटा, हम यहाँ पे जो है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन so please do let me know and then I'll move on to the topic there। सर ये ऐसे के बारे में एक सवाल था। जी बेटा प्लीज पूछें। सर ये जो लम्स लो स्कूल है, इसके लिए ऐसे रिक्वायर्ड है या नहीं, या आजकल ऐसे एस है ही नहीं? एससीटी में ऐसे नहीं होता बेटा। पहले था, अभी नहीं है ये जी डिजिटल डिजिटल सेट में। नहीं, डिजिटल एससीटी में भी नहीं है, और जो पेपर वर्जन ऑफ द एससीटी था उसमें भी हमारे पास आप समझे कि 2018 में खत्म हो गया था। ऑप्शनल था। ऑप्शनल नहीं था, खत्म हो गया था। ऑप्शनल ऐसा होता है कि वो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं कि मुझे एससीटी देना है या नहीं देना। तो ऑप्शनल वो उस केस में था। ऑप्शनल का ये मतलब नहीं है कि पेपर में आ जाएगा और आपने देना है या नहीं देना। ऑप्शनल का ये मतलब होता था कि आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप डिसाइड करते थे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट थी कि आप एससीटी के ऐसे के साथ अप्लाई करें, तो फिर वो ऑप्शनल रहता नहीं था क्योंकि हर कोई ऐसे के साथ अप्लाई करता था। फॉर एग्जांपल आईबी की भी रिक्वायरमेंट थी और लम्स की भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब तो खत्म ही हो गई है, तो इसलिए ये डिबेट ही नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन में भी नहीं आ रही है, जी नहीं आ रहा ऐसे बेटा। एक ऑप्शन नहीं है, बस खत्म। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल खत्म। सही, जरूर। थैंक यू। जी Sir, I चुनिए बेटा have प्लीज।
अच्छा, बेसिकली आई हैव हर्ड अबाउट दैट कि एसएटी शायद हमें भी रिजल्ट देता है एंड दे सेंड यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली वो रिजल्ट आपको सेंड करते हैं, कुछ ऐसी कुछ जी, चीज़। यू डू हैव अ टाइम विंडो, और आपके पास उस विंडो में आपने 4 यूनिवर्सिटीज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, दे वोंट बी आस्किंग यू फॉर एनी चार्जेस। इफ यू विश टू सेंड इट टू मोर यूनिवर्सिटीज तो फिर उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं, लेकिन आपको उस विंडो के बीच में ही भेजना होता है। उस विंडो का मतलब ये होता है कि वो यूजुअली आपको कहेंगे कि 15 days to send your scores to the universities, and then you can send those to the respective universities free of cost। हर यूनिवर्सिटी का एक कोड होता है, तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, बीट IBL, MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, तो आप उसका कोड उनको दे देंगे और फिर दे विल सेंड योर स्कोर्स डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू कैन सेंड इट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 4 यूनिवर्सिटीज। अगर 4 से ज्यादा को आप भेजना चाह रहे हो, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर अप्लाइंग टू 8 to 10 यूनिवर्सिटीज, 12 यूनिवर्सिटीज, तो फिर उसके लिए एडिशनल चार्जेस होते हैं। तो ये है बेटा। एंड ऑल्सो वो हमें भी रिजल्ट देंगे, राइट? जी जी, आपको तो देंगे ऑफ कोर्स। आपको पहले देंगे, यूनिवर्सिटीज को बाद में भेजेंगे, ऐसे ही। ठीक। सर ये रिजल्ट विद इन अ वीक और विद इन फ्यू डेज आ जाता है एसएटी? 2 weeks में आता है सरफराज बेटा, 2 weeks में। 2 में। और कौन से यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान में, कौन से स्टेट? बेटा ये हमने अभी ऊपर बहुत लेंदी डिस्कशन करी है सरफराज, आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं, तो आप उसको अभी कैच करना है रिकॉर्डिंग से। सारी सही है यूनिवर्सिटीज सर, एक्सेप्ट करती हैं बेटा, सिर्फ कुछ सही है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज वो एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए आपको फिजिक्स भी देनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, लेकिन एसईटी में जी खाली इंग्लिश मैथ्स होता है। फास्ट फॉर एग्जांपल CS के लिए वो करती है, हबीब कराची में यूनिवर्सिटी है वो करती है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। नस का बिजनेस स्कूल है वो करता है, लेकिन नस के जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए नहीं होता है। तो नस के लिए इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है, तो नस के लिए आपको अपना फिर नस का टेस्ट देना होता है। तो ये है, सही तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज करती हैं, बिजनेस स्कूल ऑलमोस्ट सारे करते हैं। सही। अच्छा, but we're starting off from a topic, so just in case if any of you has a question, so please do let me know. Otherwise, I'll move on to the topic here. थोड़ा सा हम टॉपिक ही कवर करेंगे, because there are students who are not present today and who had to join from Sunday because they had their prior commitments. लेकिन अगर आप अब मुझे बता दें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो I'll wait for it. Otherwise, I'll start with the topic. तो प्लीज if you have any questions, so please do let me know. जुनैद बेटा, मदीहा, कशफ बेटा, करार, मुशरा बेटा, फातिमा अनवर, बासित, अशरफ, नौफल बेटा, जैनब बेटा, ज़मीन, जन्नत नसीम बेटा, उमैर, नौफल, if you have any question please do ask. फातिमा अनवर बेटा, if you have any question please do ask. सर आप बता रहे थे ना कि कॉलेज बोर्ड की अपनी भी सोर्सेज हैं जिस पे आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आप बता सकते हैं कौन सी सोर्सेज हैं? अलखान मैंने एकेडमी आप बता कॉलेज बोर्ड ने खाली 6 पेपर्स रिलीज ही करे हुए हैं, लेकिन अभी तक, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कॉलेज बोर्ड का हम जो प्रैक्टिस कंटेंट यूज कर रहे होते हैं, तो क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स हम इस प्रोफेशन में हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास पेपर्स पुराने वाले बहुत हैं। अब बहुत सारे आपके पास टॉपिक्स हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर रिवैम्प हुआ है, लेकिन टॉपिक्स तो वही हैं। फॉर एग्जांपल ग्रामर के रूल्स तो चेंज नहीं हो गए होंगे, ग्रामर के रूल्स तो 100 साल पहले भी यही थे, 50 साल पहले भी ये थे, तो वो तो चेंज नहीं हुए। तो द वे दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चन हैज चेंज। तो वो हम कंटेंट को हम खुद माइग्रेट कर रहे हैं, जो कि कॉलेज बोर्ड के पुराने पेपर्स थे, और हम उनको मॉडिफाई करके जो है डी सेट के लिए मॉडिफाई करें। तो आप जितनी भी प्रैक्टिस आप ट्यूटर प्लस से करेंगे, वो कॉलेज बोर्ड के कंटेंट्स वाली होगी। मैं ये कह रहा था कि अब खान एकेडमी का जो कंटेंट है, वो फॉर एग्जांपल वो सेल खान ने बनाया हुआ है, जो कि फाउंडर हैं खान एकेडमी के, वो कॉलेज बोर्ड ने नहीं बनाया हुआ। जो चीजें हम करेंगे वो कॉलेज बोर्ड ने बनाई हुई है, क्योंकि हम आपको सिर्फ कॉलेज बोर्ड के कंटेंट को मॉडिफाई करके पढ़ा रहे हैं डी सेट के लिए। कैसे बना रहे हैं? अब आप फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन एक टॉपिक था दैट यूज्ड टू बी ऑन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द एसईटी। प्रोनाउंस एक टॉपिक था दैट यूज्ड टू बी ऑन द प्रीवियस वर्जन ऑफ द एसईटी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीवियस वर्जन ऑफ द एसईटी में भी था। तो अब जो चीजें माइग्रेट हो सकती हैं, हम उनको माइग्रेट करें। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि माइग्रेट हो ही नहीं सकते। अब बहुत सारी क्वेश्चन टाइप ऐसे हैं जो कि पेपर वर्जन ऑफ द एसईटी में थे और इसमें नहीं है,
तो हम उनको तो मूव नहीं करें, लेकिन जो दोनों में कॉमन है, जो लास्ट वर्जन ऑफ द एसीटी में भी था और इस वर्जन ऑफ द एसीटी में है, हम उसी कंटेंट को हमने अपने कंटेंट का भी पार्ट बनाया हुआ है, जो कि पेपर आप समझे कि हमने पास पेपर्स ले लिए और उन पास पेपर्स में से बहुत ज्यादा चीजों को हम यूज करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनको हम पढ़ा रहे होते हैं ना। जो हमारा क्लास का बेसिक कंटेंट है वो तो कॉलेज बोर्ड वाला नहीं होता है, वो हमारा अपना कंटेंट होता है, लेकिन जो हम प्रैक्टिस ज्यादा करा रहे होते हैं वो हम यूजुअली करते हैं एक्चुअल कॉलेज बोर्ड के पेपर से, सो दैट आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत रेलेवेंट रहे। तो ये इसके पीछे ये गोल होता है बेटा। बेटा इज इट क्लियर टू यू? ईमान आपने पूछा था बेटा, फातिमा आपने पूछा? यस सर, ओके क्लियर। मैं आपको थोड़ा सा पेपर का ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि व्हाट द पेपर इज लाइक एक्चुअली, या डी सेट के पेपर एक होता कैसे है। तो नाउ on the previous version of the SAT, we didn't have to learn a lot of vocabulary, but on this version of the SAT, we do have to learn vocabulary as well. तो आपके पास पहले तो 8 क्वेश्चंस स्ट्रेट vocabulary के, 8 to 12 क्वेश्चंस अब बी सेट में vocabulary के आते हैं। अब SAT में आपको vocabulary भी याद करनी है। अब प्रीवियस वर्जन ऑफ दी एसएटी में नहीं करनी होती थी, उससे पहले वाले वर्जन ऑफ दी एसएटी में करनी पड़ती थी। तो अब इस वर्जन ऑफ दी एसएटी में आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल द टू क्वेश्चन यू सी ऑन योर स्क्रीन्स आर बोथ रिलेटेड टू द वोकैबुलरी। ये आसान सी है, ये पायलट पेपर है, जो सैम्पल पेपर है। आपके पास जो पेपर आ रहे हैं, जो ब्लू बुक में पेपर आ रहे हैं, जो बच्चों ने मार्च के टाइम में, मई के टाइम में, जून की पेपर्स में रिपोर्ट किए हमें, तो उन्होंने यही बताया कि जो उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किए हैं वो इस वाले कंटेंट से मुश्किल हैं। तो जस्ट इन केस अगर ये आपको इजी लग रहा है, तो आप यू कैन स्पीक टू एनीवन राइट आफ्टर द मीटिंग, एंड एनीवन particularly by anyone I mean the ones who took the June SAT or the May SAT, and you can speak to them and you can ask them कि इसकी relevance तो है, और आपके पास टॉपिक्स तो सेम है, बट इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। Likewise, we have few questions based on the vocabulary, then आपके पास कुछ मेन पर्पस वाले क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, then आपके पास कुछ फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, फिर आपके पास टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, फिर आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो जाते हैं, या कुछ वो आपको कोई चीज़ बोल देते हैं पैसेज में एंड यू हैव टू आंसर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर हमारे पास इसको हम कहते हैं कमांड ऑफ एविडेंस। फिर हमारे पास राइटिंग के क्वेश्चंस में बेटा आपके पास टेंसेस भी हैं, पंक्चुएशन भी है, वोकैबुलरी भी आती है। पंक्चुएशन के क्वेश्चंस हैं, आपके पास वर्ब्स के क्वेश्चंस हैं, एक और भी चीज़ होती है हमारे पास ट्रांजिशंस, उसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे पास वो चीज़ है रैक्टिकल सिंथेसिस, उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज, ये एक मॉड्यूल है। देन यू गो ऑन टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में भी आपके पास ये चीज़ें रिपीट हो रही। मैथ्स बेटा हमारे पास भी यहाँ से, अब मैं आपको एक सैम्पल पे दिखा रहा हूँ। इट हैज़ द मैथ्स, कुछ क्वेश्चंस आपको रिडिकुलसली इजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके पास मुश्किल होते हैं, एंड देन वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैथ्स। मैथ्स के बारे में एक आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं, बट आई गेट दिस क्वेश्चन वेरी ऑफन कि सर मैथ्स के डिफिकल्टी लेवल क्या है। हमारे पास मैथ्स में 11 से 12 टॉपिक्स हैं, जीएस की मैथ्स के हैं, या आप समझे कि एड मैथ्स के हैं। द रिमेनिंग टॉपिक्स आर फ्रॉम द ओ लेवल्स वाली मैथ्स। अब मैं उन वो लोग जो कि मैट्रिकुलेशन स्ट्रीम से आ रहे हैं, तो आप समझें कि बेटा हमारे पास जो हाइब्रिड है वो यही है कि हमारे पास फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सेकंड ईयर के हैं, और कुछ मैट्रिकुलेशन के टॉपिक्स हैं। सो दैट्स हाउ अ मैथ्स एग्जाम इज। और बस उसके बाद मैथ्स का भी एक और मॉड्यूल होता है, दैट्स द फर्स्ट मॉड्यूल। और सेकंड मॉड्यूल में भी आपके पास वी हैव क्वेश्चंस लाइक दिस, एंड वंस अगेन देयर इज नो ऐसे देयर इन द पेपर एनीमोर।